और अब सुर्खियां। कड़पा के नारायणा कॉलेज में 2 तालिबात की खुदकुशी, जगन ने की सिटिंग जज के जरिए तहकीकात कराने की मांग। कल कड़पा टाउन में बंद मनाने का ऐलान। सुधीर कमेटी 6 महीनों में पेश करेगी रिपोर्ट। मुसलमानों की मुआशी, तालीमी और समाजी पसमानदगी का जायजा लेने के लिए हर जिले में कमेटी का होगा इजलास। पुलिस में खवातीन के लिए 33% रिजर्वेशन देने का वजीर दाखिला ने किया ऐलान। खुले कुतुब शाह स्टेडियम में कांस्टेबल तकर्रुरात के लिए ट्रेनिंग क्लासेस का हुआ आगाज। वजीर आजम ने किया बिहार को 1,25,000 करोड़ के पैकेज का ऐलान। मोदी ने की आराम तकरीर। और अब तफसील। कड़पा के नारायणा रेसिडेंशियल कॉलेज में इंटरमीडिएट की 2 तालिबात ने कल शाम खुदकुशी कर ली। बताया जाता है कि नंदनी और साइमनीशा ने हॉस्टल रूम में फांसी लेकर मुबैना तौर पर खुदकुशी कर ली। खुदकुशी के खिलाफ लड़कियों के रिश्तेदारों ने शदीद एहतजाज किया और तेलुगु देशम हुकूमत के खिलाफ बरहमी जाहिर की। इस वाक़े के खिलाफ ISSCP ने कल कड़पा टाउन में बंद मनाने का ऐलान किया है। कड़पा के SP नवीन गुलाटी ने बताया कि खुदकुशी वाक़े की मुकम्मल तहकीकात की जाएगी। जगन मोहन रेड्डी ने नारायणा कॉलेज में 2 लड़कियों की खुदकुशी के वाक़े की मजम्मत करते हुए इस वाक़े की सिटिंग जज के जरिए तहकीकात कराने की मांग की है। जगन ने रिम्स पहुंचकर लड़कियों के रिश्तेदारों से मुलाकात की और उन्हें पुरसा दिया। जगन ने कहा कि हुकूमत नारायणा कॉलेज इंतजामिया को बचाने की कोशिश कर रही है। जगन ने खुदकुशी और पोस्टमार्टम पर शुकूक व शुबहात जाहिर किए और लाशों का पोस्टमार्टम हैदराबाद में कराने की मांग की है। जगन ने कहा कि दुख इस बात का है कि फौत होने वाले लड़कियों के ताल्लुक से गलत तावीलात को जोड़ा जा रहा है। वायएसआर कांग्रेस पार्टी ने खुदकुशी के खिलाफ कल कड़पा टाउन में बंद मनाने का ऐलान किया है। నిజంగా చంద్రబాబు నాయుడు గారు కూడా ఇదే జిల్లాలోనే 6:30 దాకా ఇక్కడే ఉన్నాడు. ఇన్సిడెంట్ జరిగితే 2 అమ్మాయిలు కేవలం 10th క్లాస్ పాస్ అయిపోయి ఇంటర్మీడియట్ కు లాంగ్ టర్మ్ కోచింగ్ కోసం నారాయణ వాళ్ళ ట్రైనింగ్ సెంటర్స్ లో ట్రైనింగ్ తీసుకుంటూ 3 నెలలు ఇంటర్ ఫస్ట్ ఇయర్ 3 నెలల కింద ట్రైనింగ్ 3 నెలల కింద జాయిన్ అయ్యి ఆత్మహత్య చేసుకున్న పరిస్థితుల మధ్య చూస్తా ఉన్నాం. చనిపోవడానికి కారణం ఎక్కడ వాళ్ళ మీద ఎక్కడికి వస్తుందో అని భయపడి ఆ పిల్లలు లవ్ లెటర్ అని చెప్పి కొత్త కథ ఈ రోజు లెటర్ చూపిస్తున్నారు. ఈ రోజు లెటర్ కొత్త లెటర్ గుదంతం ఈ రోజు తీసుకొస్తున్నారు. నిజంగా మీకు ఇదంతా బాబేమేనా అని అడుగుతా ఉన్నా. 10వ తరగతి పిల్లలను 10వ తరగతి పాస్ అయ్యి 3 నెలలు కాల అభం శుభం ఎరగని ఆ పిల్లల మీద అబాండాలు ఈ మాదిరిగా వేయడం ఎంత మటుకు ధర్మం అని అడుగుతా ఉన్నా. 10th క్లాస్ పిల్లలకు లవ్ అంట. ఏమన్నా మీరు బుద్ధుందా, ఏం మాట్లాడుతున్నారో అని అడుగుతా ఉన్నా. నేను ఏమైనా చెప్పాలన్నా ఏదైనా మాట్లాడాలన్నా నిన్న లేని లవ్ లెటర్ ఈరోజు కొత్తగా లవ్ లెటర్ సృష్టిస్తున్నారు. ఆత్మహత్య చేసుకున్నట్టు దాంట్లో కాలేజీలకు ఎటువంటి సంబంధము లేదన్నట్టు మరో లెటర్ సృష్టించారు. ఆశ్చర్యం ఏంటంటే ఈ లెటర్లు ఏదైతే మాట్లాడుతున్నారో అవి ప్రెస్కు మాత్రమే వస్తాయి. చివరికి తల్లిదండ్రులకు కూడా లెటర్లు చూపించారు. డాక్టర్ని అడిగితే అందరు మీడియా సమక్షంలోనే అడిగితే అయ్యా నాకు చిన్న డౌటు అందరు అడుగుతా ఉన్నా, నేను మిమ్మల్ని అడుగుతా ఉన్నా, చనిపోయిన తర్వాత ఊరేసుకున్నారా పాపలు లేదా ఊరి వేసుకొని చనిపోయారా అని చెప్పి అడిగితే సమాధానం రాలే డాక్టర్ల దగ్గర నుంచి. అంటే పోస్ట్ మార్టం ఎంత దారుణంగా జరుగుతా ఉందని చెప్పడానికి ఇంతకన్నా వేరే నిదర్శనంలా పోస్ట్ మార్టం అన్యాయంగా జరిగిస్తూ ఉన్నారు. పిల్లల మీద అబాండాలు వేస్తూ ఉన్నారు. ఖచ్చితంగా దీని మీద జ్యుడిషియల్ ఎంక్వైరీ జరగాలి. సిట్టింగ్ జడ్జితో ఎంక్వైరీలు జరగాలి. ఖచ్చితంగా దీని మీద ఇంకా కాస్త ఎక్కువగా సిబిఐ ఎంక్వైరీ కూడా జరిగించాలని చెప్పి కూడా జరగాల. ఖచ్చితంగా జరగాల. రీపోస్ట్ మార్టం హైదరాబాద్ లో జరగాల. జ్యుడిషియల్ ఎంక్వైరీ సిట్టింగ్ జడ్జి చేత విచారణ జరిగించాలి. సిబిఐ ఎంక్వైరీ ఖచ్చితంగా జరగాలి. నారాయణను వెంటనే నారాయణ ఇన్స్టిట్యూట్స్ ను వెంటనే మూసేసి నారాయణను వెంటనే జైల్లో పెట్టే కార్యక్రమం.
तेलुगुदेशम के 1.5 साल दौरे हुकूमत में नारायणा कॉलेजों में अब तक 11 लड़कियों ने खुदकुशी की है। 6 अजला में मौजूद नारायणा कॉलेजों में खुदकुशी के 11 वाकयात पेश आए हैं। नारायणा कॉलेजों में होने वाले मुसलसल खुदकुशी के वाकयात पर वायएसआर कांग्रेस पार्टी के सदर जगन मोहन रेड्डी ने सवाल उठाए हैं। చంద్రబాబు నాయుడు గారు ముఖ్యమంత్రి అయిన తర్వాత గత 15 నెలలుగా ఇదే నారాయణ కాలేజీలో చనిపోయిన ఆత్మహత్యలు చేసుకున్న పిల్లలు చనిపోయిన పిల్లలు ఎంతమందో తెలుసా? తిరుపతిలో 2, అనంతపురం 1, నెల్లూరులో 4, కర్నూలులో 1, కడపలో 2, కృష్ణాలో 1, మొత్తం 11 మంది. నారాయణ కాలేజీలో 11 మంది చంద్రబాబు నాయుడు గారు ముఖ్యమంత్రి అయిన తర్వాత. మరి ఇంతమంది చనిపోతా ఉంటే 11 మంది పిల్లలు నారాయణ కాలేజీలో చనిపోతే ఈ 14 నెలల్లో 15 నెలల్లో 11 మంది చనిపోతే ఇదే చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఎందుకు గమ్మనున్నారని అడుగుతా ఉన్నా. వేరే కాలేజీల్లోనే ఇదే మాదిరిగానే పిల్లలు పిట్టలు రాలినట్టుగా రాలిపోతే ఇదే రకంగా చనిపోతే ముఖ్యమంత్రి అనే వ్యక్తి గమ్మనుంటాడా? ముఖ్యమంత్రి అనే వ్యక్తి గమ్మనే ఉంటాడా? ఇదే నారాయణ కాలేజీలో చంద్రబాబు నాయుడు గారికి భాగం ఉంది కాబట్టి ఏం జరిగినా కూడా చంద్రబాబు నాయుడు గారు చూసి చూడనట్టు పోతాడు. పిల్లలేమో చనిపోయే పరిస్థితి వస్తూ ఉంది. रियासत में एक जानिब खैहत की सूरत हाल, किसानों की खुदकुशियां जैसे अहम मसाइल हैं, वहीं दूसरी जानिब गोदावरी पुष्करालू में 30 अफराद की मौत, पट्टीसीमा प्रोजेक्ट में धांधलियां जैसे अहम मसाइल असेंबली सेशन का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन हुकूमत ने इन मसाइल पर मुबाहिस से राह फरार इख्तियार करने के लिए असेंबली का मानसून सेशन सिर्फ 5 दिन के लिए बुलाने का फैसला किया है। 31 अगस्त से शुरू होने वाला इजलास 4 सितंबर को खत्म हो जाएगा। इससे मुतालिक फाइलों को रामाकृष्णुडू ने मंजूरी देते हुए वजीर आला की मंजूरी के लिए रवाना किया है, जबकि अपोजिशन पार्टी ने असेंबली सेशन को 20 दिन तक मुनाकिद करने का मुतालबा किया है। तेलंगाना में मुसलमानों की समाजी, मुआशी और तालीमी पसमानदगी का सर्वे करने वाली कमेटी ने कहा है कि रियासत के मुसलमानों के हालात का जायजा लेते हुए 6 महीने में रिपोर्ट पेश की जाएगी। जस्टिस सुधीर ने कहा है कि जिले सतह पर भी कमेटियां तश्कील देकर मुसलमानों के हालात पर वक्फियत हासिल की जाएगी। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में जो जानकारी है, जानकारी किस तरह की चाहिए वो हम उन लोगों को बताए हैं और कुछ फिगर्स दिए हैं। जैसे सेंसस वाले हैं, सेंसस डिपार्टमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट का है, रजिस्ट्रार जनरल, डायरेक्टर सेंसस ऑपरेशंस, हर स्टेट में एक दफ्तर होता है, उनके भी ऑफिसर्स आए थे, वो भी स्टैटिस्टिक्स देकर गए हैं। और एजुकेशन के कुछ डिपार्टमेंट उनके रिपोर्ट्स दिए हैं, मुस्लिम स्टूडेंट्स कितने हैं, जैसे डिग्री कॉलेजेस हो और जूनियर कॉलेजेस वगैरह में। और डायरेक्टर ऑफ प्लानिंग, ब्यूरो ऑफ प्लानिंग इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स एक दफ्तर होता है, वो लोग भी इंफॉर्मेशन दिए हैं। एक तो सेंसस पॉपुलेशन फिगर्स की एनालिसिस और गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ का भी सेंसस होता था, पहले हुआ था, तो उनके पास जो रिपोर्ट्स हैं वो भी दिए हैं। पर इट इज़ टू अर्ली टू कम आउट विद द फिगर्स फॉर द मीडिया और द पब्लिक, क्योंकि अभी हम लोग गैदर कर रहे हैं और टर्म्स ऑफ रेफरेंस के मुताबिक उन सबको एनालाइज करके फिर हम अपनी रिपोर्ट सबमिट करेंगे। एपी को खुसूसी मौक़िफ़ का मुतालबा करते हुए वायएसआर कांग्रेस पार्टी ने 29 अगस्त को एपी बंद की कॉल दी है। पार्टी कायदीन ने कहा है कि ये बंद किसी एक पार्टी का सियासी बंद नहीं है, बल्कि रियासत के मफाद को ध्यान में रखकर किया जा रहा है। 29 को मनाए जाने वाले बंद से मुतालिक वायएसआर कांग्रेस के जिला कायदीन का लोटस पॉन्ड पर इजलास मुनाकिद हुआ। बंद से मुतालिक वॉल पोस्टर जारी किया गया। उमा रेड्डी वेंकटेश्वरलू ने सियासी इख्तलाफात को बालाए ताक रखकर इस बंद में हिस्सा लेने की अपील की है। ఈ రాష్ట్రానికి స్పెషల్ స్టేటస్ ఇచ్చేదానిలో అది ముందుకు వస్తుందనే ఉద్దేశంతో 29వ తారీఖున మేము బంద్ నిర్వహించబోతా ఉన్నాం. ఆ సందర్భంగానే ఈరోజు వాల్ పోస్టర్లు రిలీజ్ చేశాం. వాల్ పోస్టర్లే కాక మేము తర్వాత ఇంకా వివరంగా హ్యాండ్అవుట్స్ కూడా చేయబోతా ఉన్నాం. వీటన్నిటికీ మొత్తం ప్రతి వర్గానికి ఇది చేరాలి,
ఇది కేవలం రాజకీయంగా ఏ వర్గానికి సంబంధించిందో కాదు, ఏ పొలిటికల్ పార్టీకి సంబంధించిందో కాదు, ఇది రాష్ట్ర ప్రయోజనాలను దృష్టిలో పెట్టుకొని చేస్తూ ఉన్నది. కాబట్టి మేమైతే వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ తరఫున అందరికీ, అన్ని వర్గాలకి, అన్ని ఆర్గనైజేషన్స్కి ఈరోజు వాళ్ళకి అప్పీల్ చేస్తూ ఉన్నాం. అందరూ దీన్ని రాజకీయాలకు అతీతంగా మీరందరూ దీనిలో పార్టిసిపేట్ చేయండి. రాష్ట్రం యొక్క ఆకాంక్ష ఏంటో కేంద్రానికి తెలిసేటట్టు ఆ బంద్లో పాల్గొనాలని కూడా మేము అందరికీ वोट के बदले नोट मामले में चंद्रबाबू नायडू को A1 क्यों मुकर्रर नहीं किया गया है, वाईएसआर कांग्रेस ने ये सवाल किया है। पार्टी लीडर बोसा सत्यनारायण ने कहा कि बाबू खुद को खुसूसी मौक़िफ़ दिलाने के लिए रियासत के खुसूसी मौक़िफ़ को कुर्बान कर रहे हैं। ఇవాళ అడుగుతున్నాం ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని, లేదు అంటే ఏసీబీ దర్యాప్తు సంస్థని ఏవన్గా చంద్రబాబు నాయుడిని ఎందుకు మీరు చేర్చట్లేదు? ఏమిటి ఇందులో ఉన్న మర్మం? ఇవాళ 22 సార్లు ఆయన పేరును వచ్చి ఉటకించేందుకు ఏసీబీ పేరును ఉటకించి ఆయన అక్యూజ్డ్ గారు ఆయన పెట్టిందో దాంట్లో నుంచి బయటపడడానికి కేంద్రంలో ఉన్న మంత్రుల్ని, ప్రధానమంత్రిని ఒప్పించి వాళ్ళ నుంచి వాళ్ళని వేడుకొని దాంట్లోంచి ఏ రకంగా బయటపడదామని చెప్పి బతిమాల వాళ్ళని కొనడానికి వెళ్ళారు తప్ప రాష్ట్రం గురించి వెళ్ళలేదు. రాష్ట్ర విభజన చట్టంలో ఏవైతే రాష్ట్రానికి రావాల్సిన ప్యాకేజ్ ఏవైతే ఉన్నాయో, అంశాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని నిర్లక్ష్యం చేస్తున్నారు. ఎందుకు? ఇతని తాలూకు స్వార్థం వల్ల. అతనికి స్పెషల్ స్టేటస్ కావాలి, అతనికి కావాలి స్పెషల్ స్టేటస్. ఏంటి? ఏ తప్పు జరిగినా, ఏం జరిగినా ఎవరు కూడా చట్టాలు ఏవి అతని దగ్గర దరిచేరకూడదు, ఆయన ప్రశ్నించకూడదు అనే ఆలోచనతో ఆయన చేస్తాడు. కాబట్టి రాష్ట్రానికి స్పెషల్ స్టేటస్ అవసరం లేదు. साक्षी खबर में दोबारा आपका इस्तकबाल है। पीईटी डायरेक्टरों ने उनके मसाइल को हल करने का मुतालबा करते हुए टीईओ दफ्तर के रूबरू धरना मुनज़्ज़म किया। 18 मसाइल को हल करने का मुतालबा करते हुए पीईटी डायरेक्टरों ने ओहदेदारों को पहले ही नोटिस दे दी है, जिस पर ओहदेदारों का कोई रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया, जिस पर बरहम पीईटी टीचरों ने धरना मुनज़्ज़म किया और पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की। हालात कशीदा होने पर पुलिस ने एहतजाजियों को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद पुलिस और एहतजाजियों में टकराव की नौबत पैदा हो गई। मसाइल के हल की अपील करते हुए वाईएसआर कांग्रेस टीचर फेडरेशन ने वाईएस जगन से मुलाकात की। कड़पा दौरे के दौरान पुलिविंदला में अनंतपुर, कड़पा और कर्नूल टीचर्स फेडरेशन के नुमाइंदों ने जगन से मुलाकात की। उन्होंने बताया कि जियो नंबर 53 के जरिए वाईएसआर की जानिब से शुरू करदा सक्सेस स्कूल को खत्म करने का अंदेशा है। जगन ने कहा कि असेंबली में टीचरों के मसाइल पर नुमाइंदगी की जाएगी। तेलंगाना महकमे पुलिस की जानिब से खुली कुतुब शाह स्टेडियम में कांस्टेबल्स की जिस्मानी ट्रेनिंग कैंप का आगाज किया गया है। इस मौके पर नायब वजीर आला महमूद अली, वजीर दाखिला नरसिम्हा रेड्डी और हैदराबाद MP ने शिरकत की। नरसिम्हा रेड्डी ने इस मौके पर पुलिस महकमे के तकर्रुरात में खवातीन को 33% रिजर्वेशन देने का ऐलान किया है, जबकि असद अवैसी ने नौजवानों को कैंप से इस्तेफादा करने का मशवरा दिया है। के जरिए फिजिकल इम्तिहान में आप पास होंगे तो उसके बाद जो रिटर्न एग्जामिनेशन होगा उस सिलसिले में भी ट्रेनिंग दी जाएगी, ताकि आपको रिटर्न एग्जामिनेशन में भी आप कामयाबी हासिल कर सकें। और साथ ही साथ जो लोग ग्रेजुएट हैं, 520 SI का रिक्रूटमेंट होने जा रहा है और एक SI की तनख्वाह अगर आप कामयाब हो जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह उसमें इंशाअल्लाह, तो करीब मेरे ख्याल से 30 से 35 हज़ार रुपये माहाना तनख्वाह आपको मिलेगी। तो ये बहुत जरूरी है कि आप इस का फायदा उठाएं और मेहनत करें। 2 महीने अगर आप फिजिकल ट्रेनिंग में मेहनत करेंगे तो यकीनन इंशाअल्लाह ताला उसके बाद रिटर्न एग्जामिनेशन में आप कामयाबी हासिल कर लेंगे। मैं जनाब महमूद अली साहब की मौजूदगी में उनसे इस बात की गुजारिश करता हूं, क्योंकि पूरे रियासत तेलंगाना में पुलिस कांस्टेबल्स का रिक्रूटमेंट होने जा रहा है, क्यों नहीं तेलंगाना की हुकूमत और खास तौर से वजारत अखिलती बहबूद तेलंगाना के जो बड़े बड़े जिले हैं, चाहे निजामाबाद हो, करीमनगर हो, मेदक हो या फिर आदिलाबाद हो, यहां पर भी वजारत अखिलती बहबूद की तरफ से इस तरह के ट्रेनिंग कैंप्स का आप इनेकाद अमल में लाइए। हमने पुलिस डिपार्टमेंट में 50% लिस्ट बंद करने का डिसीजन लिया, कैबिनेट ने डिसीजन लिया, सीएम का बोले अब आइंदा जो भी रिक्रूटमेंट होगा लिस्ट को भी
30% रिक्रूटमेंट में लिया जाएगा। हज हाउस नामपल्ली में 31 अगस्त से हज कैंप मुनक़िद होगा। 2 सितंबर से परवाज़ों का आगाज़ होगा। 8 परवाज़ों के जरिए तेलंगाना और एपी के आज़मीन रास जिद्दा रवाना होंगे। आज़मीन से 48 घंटे पहले हज कैंप से रुजू होने की हिदायत दी गई है। बारिश के पेश नज़र हज हाउस में शेड्स का इंतज़ाम किया गया है। प्रोफेसर एस शकूर की निगरानी में तमाम इंतज़ामात को ख़तयत दी गई है। तो हमारे फ़्लाइट का जो आगाज़ है वो 2 सितंबर से 8 सितंबर तक जुमला 16 फ़्लाइट एयर इंडिया के फ़्लाइट्स हैं। जुमला 16 फ़्लाइट हैं और इंडिविजुअल शेड्यूल इंशाअल्लाह ताला 1-2 दिन में इंडिविजुअल शेड्यूल भी आ जाएगा, जिसके बाद हम तमाम आदमी को उसकी इत्तला कर देंगे इंशाअल्लाह ताला। पहली फ़्लाइट के लिए हम चीफ मिनिस्टर साहब से टाइम लेंगे इंशाअल्लाह पहली फ़्लाइट या पहले दिन के लिए, क्योंकि 2 तारीख़ के दिन पहला जिस दिन फ़्लाइट्स का आगाज़ होगा उस दिन 3 फ़्लाइट्स हैं, सुबह 6 बजे, 9 बजे और रात में 11 बजे है। तो इंशाअल्लाह ताला उसमें से कोई एक फ़्लाइट के लिए हम जो है वज़ीर आला से, रियासत तेलंगाना के वज़ीर आला से इसका वक्त हम लेंगे इंशाअल्लाह ताला। तमाम इंतज़ामात क़ियाम के ताम के इस मरतबा बहुत सी तब्दीली की गई है। जो 11 साल से एक ही तरह से जिस सेटअप जो था उसमें बहुत सारी तब्दीली की गई है। अब के सारे उमूर इस ग्राउंड में काउंटर्स बना के इमिग्रेशन, कस्टम और बैंक काउंटर वगैरह, इसके अलावा जो वीआईपी का जो प्रोग्राम है वो भी इसी ग्राउंड में किया जाएगा। और बाजू की जो नई बिल्डिंग तामीर हो रही है उसमें ग्राउंड फ्लोर पर ताम का यानी खाने का इंतज़ाम किया जाएगा और फर्स्ट और सेकंड फ्लोर पर वहाँ पर भी क़ियाम का इंतज़ाम किया जाएगा। इसके अलावा हज हाउस में भी क़ियाम का इंतज़ाम किया जाएगा, क्योंकि साइबराबाद पुलिस ने जाली पैन कार्ड और वोटर आईडी कार्ड तैयार करने वाले एक रैकेट को बेनकाब किया है। पुलिस ने इस सिलसिले में वरंगल से ताल्लुक़ रखने वाले शख्स को गिरफ्तार किया, जो जाली पैन कार्ड, जाली आईटी रिटर्न्स तैयार करके बैंकों को 65 लाख रुपये का चूना लगाया है। साइबराबाद के कमिश्नर पुलिस CV आनंद ने मीडिया से बात करते हुए इस रैकेट के बारे में तफसीलात बताई है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने बिहार के लिए 1,25,000 करोड़ के पैकेज का ऐलान किया है। इसके अलावा 40,000 करोड़ बिहार के मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स की तकमील के लिए जारी होंगे। बिहार को जुमला 1,65,000 करोड़ का पैकेज मिलेगा। वज़ीर-ए-आज़म ने बिहार के आरा में तकरीर करते हुए ये ऐलान किया। मोदी आरा में कौमी शाहरा और स्किल डेवलपमेंट के इफ्तिताह के बाद खिताब कर रहे थे। मोदी ने कहा कि वाजपेयी हुकूमत ने 10,000 करोड़ का पैकेज दिया था, ताहम इसमें से 9,000 करोड़ खर्च किए गए। उन्होंने नीतीश कुमार को तनकीद का निशाना बनाया। बिहार में इस बार इंतखाबात दिलचस्प होने की उम्मीद है। बिहार के इंतखाबी मैदान में उतर रही मजलिस पार्टी से दूसरी पार्टियों का वोट बैंक मुतासिर होने का कवी इम्कान है। इस वक्त जनता परिवार व कांग्रेस के अलावा बीजेपी को भी वोट बैंक बचाने की फिक्र लाहक हो गई है। बिहार असेंबली इंतखाबात में सीमांचल इलाके में 4 अजला के 25 हलकों में मजलिस की जानिब से मुकाबला करने का पार्टी सदर असदुद्दीन ओवैसी ने फैसला किया है। किशनबाग, अररिया, पूर्णिया और कटिहार अजला में मुस्लिम वोट बैंक फैसला कुन मौक़िफ़ रखता है। किशनगंज में मुनक्किदा मजलिस के जलसे आम में अवाम की कसीर तादाद ने शिरकत की। बक्सर और भोजपुर का आप मुताला करिए कि हमारे पास जमीन भी उतनी, यहाँ पर नहरें भी उतनी, छोटी नहरें हैं, मगर यहाँ पर प्रोडक्शन जीरो क्यों है? मिस्टर चीफ मिनिस्टर, ये किताब के अल्फाज नहीं बल्कि सीमांचल की एक अवाम जो जिंदा खौफ की निशानी है, तुमसे सवाल कर रही है कि बताओ इंसाफ क्यों नहीं हुआ। ओवैसी के फैसले से बीजेपी में हलचल मची हुई है, क्योंकि सन 2010 में इन 25 हलकों में बीजेपी ने 13 हलकों पर कामयाबी हासिल की थी। अगर इन इलाकों में बीजेपी का वोट बैंक मुतासर होता है तो मोदी का 185 प्लस का ख्वाब चकनाचूर हो जाएगा। किशनगंज जिले में मुसलमानों की आबादी 69% है। मजलिस का असर सिर्फ बीजेपी पर ही नहीं बल्कि आरजेडी, जेडीयू, कांग्रेस इत्तेहाद पर भी पड़ना यकीनी है। लेकिन इस बात का खुलासा उस वक्त ही होगा कि मजलिस किस पार्टी का कितना वोट बैंक मुतासर करती है। इसी बात पर दोनों पार्टियों की जीत का इन्हिसार है।
महाराष्ट्र में मजलिस पार्टी ने मैदान में उतरकर कांग्रेस और शिवसेना को झटका दिया था। शोलापुर सीट पर तो मजलिस ने कामयाबी हासिल नहीं कर सकी, मगर यहां कांग्रेस की हार का सबब जरूर बन गई। महाराष्ट्र इंतखाबात के बाद से ही कांग्रेस ने मजलिस पर शदीद बरहमी और खुले वार का सिलसिला शुरू किया। दूसरी जानिब शिवसेना ने भी मजलिस पर शदीद तनकीद की। अब महाराष्ट्र जैसी सूरत हाल का यादा बिहार में भी होने का अंदाजा लगाया जा रहा है, लेकिन किस पार्टी को ज्यादा नुकसान होगा देखने वाली बात होगी। सन 2010 इंतखाबात में जेडीयू इत्तेहाद ने 115 हलकों में कामयाबी हासिल की थी, जबकि बीजेपी को 91 मकामात पर इक्तफा करना पड़ा था। अगर मजलिस के असर से बीजेपी के मकामात में कमी होने के अंदेशे के पेश नजर दीगर पार्टियों को बाहर से तायीद करने की नौबत आएगी। अब तक बीजेपी को बिहार असेंबली पर कब्जा करने का यकीन था, मगर अब वो एतमाद बीजेपी में नजर नहीं आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, साक्षी खबर। सुप्रीम कोर्ट को धमकी आमेज मकतूब मिलने के बाद अदालत के अतराफ सिक्योरिटी को सख्त कर दिया गया है। भेजे गए मकतूब में सुप्रीम कोर्ट को धमाके से उड़ाने की धमकी दी गई है। इस मकतूब को दिल्ली पुलिस के हवाले किया गया है। एक शख्स की जानिब से जिसकी शिनाख्त सिक्योरिटी वजूहात की बिना राज में रखी गई है, उसने धमकी आमेज मकतूब रवाना किया है। इस मकतूब के वसूल होने के बाद सुप्रीम कोर्ट कॉम्प्लेक्स तिलक रोड में सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। सदर जमहूरिया हिंद प्रणब मुखर्जी की अहलिया स्वरा मुखर्जी दिल्ली के आर्मी अस्पताल में चल बसी। चंद दिन से वो बीमार थी, जिसके सबब उनका आर्मी अस्पताल में इलाज किया जा रहा था। वो 58 बरस की थी। आलमी बैडमिंटन चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीतने वाली साइना नेहवाल ने कोच की तब्दीली पर सनसनीखेज रिमार्क किया है। पिछले चंद सालों से साइना ने पी गोपीचंद से ट्रेनिंग हासिल की। अब साइना का कहना है कि उनका बेंगलुरु मुंतकिल होना खुशाइंद साबित हुआ है। उन्होंने जीत का सहरा कोच विमल कुमार और प्रकाश पुरुकोन के सर बांधा है। I think the move was really fantastic. It was important, and when I moved, I think there was a lot of doubt from people, but I never had that doubt. I was only confident that the results will come, and I'm really thankful to Vimal sir. He's worked so hard with me. He's putting all his efforts to make me a better player, to improve me. So I would like to thank Vimal Kumar sir, Prakash sir for giving great inputs and making me mentally very strong, and also my parents, both of them are sacrificing so much now, so I would like to thank both of them. आखिर में सुर्खियां एक बार फिर।